मतलब it matters to I've heard of people who have died for their squad, sir. मतलब during training, exactly दौड़ने के लिए, exactly running हमारे में. एक सीनियर है, he's from the 8, his name is DCC Yes, sir. Deepak Mudgal. तो Yes. he was one of those cadets and he was my father's junior and उनकी फोटो हमारे स्क्वाड्रन में लगी हुई है along with मेजर मोहित शर्मा एंड कर्नल Yes, sir. एंजन नायर Yeah. एंड दैट मच सैंटिटी इज देयर फॉर हिम कि डीसी दीपक मुदगल की इम्पोर्टेंस एंड एक इंजन इंडिया स्क्वाड्रन के बंदे के लिए इतनी ज़्यादा थी कि हर क्रॉस कंट्री से पहले ये बोला जाता था कि भाई डीसीसी दीपक मुदगल डाइड फॉर हिज स्क्वाड्रन. Yes. He was having fever and he was told not to run. He had fever like 104, but he Extremely bad. said ki sir, I am the cross country captain, I am a six-termer, I am a DCC, I am an appointment. If I don't run, then what will I tell my juniors? So he wanted to Yes. set an example and उनका वो था कि he never gave up and he still ran. He died just initially fainted, but while going to the hospital he died on the table Yes, sir. and he fainted just 100 meters short of the finishing line. तो वहाँ तक वो भागे and it's just amazing his story. If you go to the India squadron, you will see his story written there, and he is now Yes. immortalized for the cadets of India squadron and the world. In fact, in my when I was sixth summer, Lieutenant General R.P. Singh, he was a हाँ, sir. Western Army commander, so he came to our squadron and he saw his picture and he saluted to him because and he is his junior. This is Deepak Mudgal is his junior. He is from the 86. Yes. General R.P. Singh is from 56. But still he saluted him. He out of respect he had that for the cadet and it's just amazing. He was cremated with full military honors and his course-mates Yes. were there and just amazing. So जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है. इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए. आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ. मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके. यार अगर कोई बंदा CPSS की तैयारी कर रहा है, मतलब कोई एयरफोर्स फ्लाई बॉय एस्पिरेंट है तेरी तरह, ठीक है, तो Yes, sir. CPSS की उसको क्या तैयारी कर सकता है वो बिफोर हैंड? बिकॉज आई हर्ड कि इसका कोई सिमुलेटर Before. वगैरह अवेलेबल शायद से नहीं है मार्केट में जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. Yes, तो sir. तुम क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग है या क्या साइकोमोटर स्किल्स हैं जो तुम गेन कर सकते हो इन अ लॉन्ग रन सो दैट यू कैन क्लियर योर CPSS? बिकॉज काफ़ी लोग कैजुअलिटी हो जाते हैं एयरफोर्स में. So, sir, there are different parts to the CPSS selection program. ओके. Uske there are two parts. There is something called the cognitive tests, which you give first, ओके. and then there is a collection of tests called psychomotor skills. ओके. तो बेसिकली दो चीजें हैं कि एक में इट्स ओनली टेस्टिंग की तुम्हारा कैलकुलेशन, स्पीड ऑफ डिसीजन, वो सब कैसा है. सेकंड में दे आर चेकिंग कि तुम्हारा हैंड टू माइंड कोऑर्डिनेशन कितना है, हैंड टू बॉडी. बेसिकली तुम्हारा पैर भी चेक होंगे उसमें, हाथ भी चेक होगा. सो कॉग्निटिव के लिए सर देयर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. वहां उसमें मैथ्स, फिजिक्स, बेसिक जनरल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चंस एंड हर चीज होगा. ओके. So there is no proper preparation for that, but majority of those questions are related to aircraft, instruments. ओके. ओके. So there are different kind of instruments that will be shown there when you go for your CPSS. They'll show you those instruments. They'll show you an altimeter, they'll show you an odometer, they'll show you a leveler, they'll show you a radar. सब कुछ दिखाएंगे. And then they'll ask you कि अगर ये रीडिंग हुआ तो जहाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है. They'll explain it properly, but that you can prepare beforehand.
कि अगर आपको पता है कि रीडिंग क्या होती है अल्टीमीटर की, आपको पता है कि इसकी क्या मतलब कितना बैलेंस है, लेवल्ड है, नीचे जा रहा है, बैंग कर रहा है, अगर आपको पहले से पता है तो इट्स मच बेटर एंड ऑनलाइन अवेलेबल है. बट आई वुड से कि ठीक है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज साइकोमोटर स्किल्स, ओके where there are different tests where you have to control the joystick along with the rudder pedals which will be available beneath your feet. या And उसको कंट्रोल करते करते there will be different tests. 11 टेस्ट होते हैं उसमें, 11-12 टेस्ट होते हैं उसमें, where you have to take the dot to, मतलब वो कभी कभी ऐसे टेस्ट आएंगे कि खूब सारे एरोज आ रहे हैं एंड आपको आपके हेडफोन्स होंगे, हेडफोन्स में एक साउंड आएगी तो आपको साउंड फटाफट कैच करके यू हैव टू प्रेस दैट बटन. तो बस वो देखना है कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है. And उसके लिए practice is you can buy a joystick, normal regular joystick, and using that you can practice. on video basic. games? हाँ sir. On video games, practice on what? Like हाँ, video games. Video Video games. games. Okay. Video games. On video games or generally if you just have a joystick and you just मतलब your leg should move with your, जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना सर, क्लच पेडल जैसे मूव करता है, क्लच और ब्रेक जैसे टांग मूव करती है वैसे ही आपका हाथ गियर पे मूव करता है. सेम थ्योरी, डिट्टो सेम. Okay, so basically, using multiple limbs at the same time, उसका जो synchronization कोऑर्डिनेशन जो है, synchronization and Yes, sir. coordination, you have to work on that. Okay, so ये joystick का एक बता दिया और एक तो मेरा hand stability का कुछ बता रहा था. हाँ सर, हैंड स्टेबिलिटी का मैं बता रहा था कि there is something called CHAM, CHAM, which Okay. stands for control, hold, adjust, Okay. and M से फिर you move. Okay. So this is actually, if you will find it, ये खूब सारे जो this actually I found out when I went for my medicals, Okay. and वहाँ there were a lot of medical doctors. Okay. Aerospace में मेरा IIM में I had my medicals. So वहाँ there are a lot of aerospace doctors. So when I discussed with them about CPSS and all, so they were telling me there's something called CHAM. So it is basically that you give an input to the machine. जो simulator है, it is very sensitive. मतलब आप ऐसे टच कर दोगे ना सर, Yes. तो डॉट इधर से ऐसे फटाफट चला जाएगा. Okay. Okay. उसी को कंट्रोल करना इज द की. तो Okay. आपने पहले कंट्रोल दिया, फिर आपने होल्ड किया, वेट किया कि कहाँ जा रही है वो स्क्वायर, कहाँ जा रही है, फिर आपने एडजस्ट किया और फिर आपने मूव किया पूरी जॉयस्टिक को. Okay. सो बेसिकली वही CHAM है. एंड अगर इफ समवन इज रियली इंटरेस्टेड एंड हैज द रिसोर्सेज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एस कॉम्बैट 7 करके एक गेम है. Ace Combat 7. हाँ. Okay. एंड इट इज वेरी रियलिस्टिक. मतलब I would say it's pretty realistic. So जहाँ तक playing I've that seen. game on the joystick, that would help to an extent. It will help to an extent, and it Okay. has pura setup. You'll have a VR thing with you. Okay. You'll have a controller with you. Okay. It is very similar to that, Got it. and हो जाएगा उससे, फिर थोड़ा कंट्रोल मिल जाए. उसे बेसिक आइडिया बट जैसे अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो बेसिक लाइफ में भी कुछ चेंजेस ला सकता है मोटर स्किल्स बढ़ाने के लिए, है ना? हाँ सर, जैसे गाड़ी तो होगी गाड़ी किसी के वाड़ी पास, चलाना, बाइक गाड़ी चला चलाना. सकता है. हाँ. गाड़ी चला सकता है. आप साइकिल चलाते हुए भी आप मतलब अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना. आपको बस मूवमेंट्स कंट्रोल करनी है. एंड बट इतना भी फिर देखो वही सर, ओवर प्रिपरेशन का चीज. अगर कोई बंदा पागलों की तरह वो ना जॉयस्टिक करता रहे एंड वो करता रहे, इन दी एंड आप वहां जाके इतने ओवर प्रिपेयर हो जाओगे कि आपसे वो पकड़ा ही नहीं जाएगा जॉयस्टिक. You're right. I agree. तो Good है. आराम से बस, नथिंग टू, टेंशन नहीं लेनी कभी, ना लाइफ में ना एसएसबी में, टेंशन नहीं लेनी. अच्छा वो बता, जब वो रेकमेंड होते हैं जब, और वो नंबर बोलता है तेरा कि यार चेस्ट नंबर सो एंड सो, तो जब तुम जाते हो वहाँ पे तो जैसे वो फ्लैशबैक होता है ना एक, कि वो एक ऐसे जैसे एक छोटी सी मूवी क्लिप चलती है तुम्हारे दिमाग में कि यार ये सारी मैंने मेहनत की और ये मैं रेकमेंड होगा. अब समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस तो सर, यस सर, वो अंडरस्टूड. जो एकदम ऐसे जो मूवी चलती है और फिर वो जो तुम्हारी फीलिंग आती है अंदर से कि यार मैंने फाइनली कुछ किया है जिंदगी में, वो खाड़ा है तुमने, तो हाँ वो वाली मेरे को फीलिंग बता कि तेरे को कैसा लगा था रेकमेंड होने के बाद, और कैसी वो फीलिंग थी, और तूने फिर मेडिकल में बिकॉज यू बिकम फ्रेंड्स, उससे पहले तो यू आर जस्ट कैंडिडेट्स, उसके बाद यू बिकम रियल फ्रेंड्स फॉर लाइफ. मेडिकल में बिकॉज यू हाँ. स्पेंड टाइम टुगेदर,
तो वो अपनी थोड़ी yes. दोस्ती और बाकी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा बताना है। I would say सर कि मतलब this is just my personal opinion कि it is better कि आप SSB में ही दोस्त बना लो। मतलब हाँ if you treat them as good people ना as हाँ your friends, मैं हाँ बता रहा हूँ I'm still in touch with my group SSB group यस and मतलब and the only reason I feel ना my GT went very smoothly was हाँ because I was friends with them ओके कि मतलब I you know on my first day I started acting like यार मैं इनको सदियों से जानता हूँ I would we were all together for most of the time my group हाँ so I would treat them as my friends very close friends and that actually helped क्योंकि ना सर I'll give an example if you don't mind जब अपना GT में थे सर जब PGT होता है PGT वाली टेस्ट होती है यस so it is chaos sir मतलब you have such short time वहां से वो GTO is you know shouting at you कि hurry it up यार you're taking so much time and all and everybody wants to give ideas everybody wants to get recommended so you know and there is a lot of science behind your GTO structures lot of science fulcrum support का ना बहुत science है and that fulcrum support basic understanding you know you have to have that understanding for if you want to clear GT so I was making my structure मैं PGT में आगे था सर and मैं structure बना रहा था and वहां से वो मतलब fed up हो गए थोड़े बच्चे चिल्लाने लगे कि यार you're wasting so much time let's try something else and all but one of those kid you know asked me कि यार why are you trying this why will my method not work अब now अगर मैं उसको बोलता नहीं यार तुम्हारा ऐसे काम नहीं करेगा let's what I'm doing is right what you're doing is wrong that won't work with anybody but I told him the science behind it in very short वो मैंने बताया कि यार ऐसे तुम रखोगे तो ये फलक्रम नहीं चलेगा ऐसे टाइप बताया and he understood that only because उसने उतना पेशेंस रखा कि वो मेरी बात सुन रहा है वरना कोई इतना पेशेंस नहीं रखता एंड वो पेशेंस इसलिए बना क्योंकि मैं उसके साथ वेरी फ्रेंडली था पहले अगर मैं उससे लड़ाई कर लेता मेरी कहाँ बात सुनता अभी है ना सर सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेमोराइज इज कि जब आप घुसो एसएसबी के लिए forget anybody is your competition nobody is your competition वहां when they review your candidature they are not comparing it with other people they are not comparing it with other candidates they are only comparing it with yourself so forget anybody is your competition treat everyone as your friend and from then onwards you know but ऐसे इतना भी close नहीं हो जाना कि फिर ना they start taking you for granted set your boundaries they'll know क्या हाँ यार he's a good guy he's helpful he's nice but उसका फायदा नहीं उठाना है ना उतना अगर आपने देख लिया सर आपको कोई ताकत नहीं है जो एसएसबी में रोक सकती कोई ताकत नहीं है ठीक है एंड सॉरी सर मैं आई वेंट फॉर अ मोनोलॉग but back to your question I completely agree with you you said it right yes तो यार I'll come back to your question हाँ सर मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आई कि मैं रिकमेंड हो गया सर बिकॉज इट वाज सो हेक्टिक ऐसे ना एंड if you ask me what is the difficulty level when it comes to the forge procedure I would say the lowest is SSB then a little bit tougher is written then it's medicals because medicals में तो कुछ हाथ में नहीं है आपको कुछ नहीं पता and the worst part is documentation the recommendation के बाद I completely agree with you and every single guy who has come on the show ना he also says the same thing कि सर सारी feeling जो है ना वो बहुत ही मोमेंटरी होती है उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होती है तो सारा जोश ठंडा हो जाता है सर एकदम आपको ना टू यू नो लेवल यू पार्डन मी सर बट औकात पे ले आती है डॉक्यूमेंटेशन इट टीचेस यू कि यार ज्यादा उड़ो मत अभी बने नहीं हो तू फौजी ठीक है इट ट्रीट्स यू लाइक दैट ओह गॉड एंड यू नो मे बी इट्स नॉट देयर यू नो नॉट देयर मिस्टेक बट जो वहां लोग होते हैं दी ऑफिसर्स एंड दी एयरमैन दैट आर विद यू उनने इतने सारे देखे हैं बैचेस गेटिंग रिकमेंडेड दे डोंट केयर तुमने कुछ नहीं किया है तुमने लाइफ में यू आर स्टिल दैट सेम कैंडिडेट जो अभी भी बाहर जा सकता है तो वो तो ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे फटाफट ये करो देन आई विल टेल यू वन एनेक्डोट सर कि हम भर रहे थे अपना फॉर्म भर रहे थे एक फॉर्म आया था एंड हम मजे से भर रहे थे देन ना मतलब बहुत देर डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी लॉन्ग इट्स अराउंड 6 to 7 hours I know buddy and हाँ सेम सर सेम एंड मतलब हाँ ऑब्वियसली सर वुड नो बेटर कि वहां तो बहुत टाइम लगता है एंड हम कर रहे हैं
एंड भरते भरते ना एक 5 स्टार का एक बॉक्स आया, एक सर लेके आ रहे थे 5 स्टार का बॉक्स। तो यार मैंने फिर अपने बगल वाले जो बैठा था रिकमेंडेड मेट, उसके ऐसे हाथ डाला, मैंने कहा यार अब हुए रिकमेंड, अब थोड़ा फील आया कि मतलब है चॉकलेट मिलेगी। तो वो सर आए, बॉक्स डब्बा पास आया, उस बॉक्स में से कैलकुलेटर निकले कि ये लो अपना ट्रैवल अलाउंस कैलकुलेट करो और लिख दो इधर। तो उसके बाद तो सर फिर एंड मतलब हाँ सर, फिर तो वही था एंड इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, फटाफट होता रहा। फिर जब गेट से बाहर निकले, हमने कहा सर फोटो खींचने, तो उन्होंने भगा दिया कि नो नो यू विल नॉट टेक फोटोज हियर, ऐसे करके। शिट यार। तो फीलिंग तो सर सब चली गई थी वहां। वो हाँ, फिर घर आके याद हुआ कि अच्छा रिकमेंड भी हुए recommend थे। है। रिश्तेदार याद दिला देते ना। हाँ सर, हाँ, अच्छा। रिश्तेदार याद दिलाते हैं। हाँ, चल। सो सर व्हाट ऑल क्लब्स डिड यू जॉइन सर, डिड यू टेक पार्ट इन? See, I was one of those lucky guys who got their clubs in first term. In when I अच्छा joined सर। academy, I initially when I joined academy तो वहाँ से ना सेकेंड टर्म से क्लब मिलते थे। ये था कि जी फर्स्ट सर। टर्म में आप पीटी करोगे एक्स्ट्रा शाम को, ताकि आपके पीटी के स्किल्स यस। ठीक रहे, और आप इसके लिए जाओगे, क्या बोलते हैं, कैंप प्रैक्टिस के लिए, या बेसिक आपकी इंडक्शन प्रोसेस में जो थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है उसमें, तो यस। किट इशू में या ऐसी ऐसी चीज़ों में चल जाता है शाम का टाइम तो। बट आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज हु वेंट टू क्लब इन हिज फर्स्ट टर्म बिकॉज आई वॉज सिलेक्टेड इन अकेडमी टीम गोल्फ। So in my first term, I played academy team golf. I represented my academy, and वाओ सर। I played in some tournaments inside the academy and outside as well. I went, and it was beautiful experience. I won a tournament, and वहाँ पे एक ex India था. He was from my squadron, but a pass out. यस सर। So he gave me lift. वहाँ पे he was offering me beer in front of my instructors. So because he was happy कि as because I was wearing my squadron color. तो हाँ वो स्कॉडन कलर में मेरे को देख के बहुत हाइपर हो गया बंदा, तो उसने ये ऑफर्ड मी बियर, बट आई हैव टू काइंडली आई हैव टू रिफ्यूज, बट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग दैट आई वाज representing academy in my squadron color यस सर। and winning the tournament. So फर्स्ट टर्म में तो गोल्फ था, फिर मैं सेकंड टर्म में आया तो थोड़ा सा सीनियर, बहुत थोड़ा, बट स्टिल वेरी जूनियर एकेडमी के टर्म्स में। तो आई थॉट कि यस। यार गोल्फ से ना ठीक नहीं रहेगा, आई नीड टू प्ले सम ट्रूप गेम बिकॉज सिंस आई वॉज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, आई यूज टू प्ले यस सर। बास्केटबॉल एंड आई यूज टू प्ले लिटिल, जो एपीएस में एक फुटबॉल के नाम पे मजाक होता है, लेकिन फुटबॉल आई वॉज अवेयर कि कैसे खेलते हैं। यस सर। तो मैंने यस। सोचा कि यार मैं ट्रूप गेम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ बिकॉज दैट्स वेयर यू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम योर जूनियर्स। तो I started playing यस। basketball and I started playing football, and hockey भी I learned there in academy, in which sport unfortunately I got hurt in my sixth term. तो but ठीक है, it's part of the training process, and फिर in my third term I was told by my squadron commander कि Sota you need to go for rock climbing. So I was chained अच्छा। and I chained my club 3 times in 3 terms. So I got the best experience in academy, and फिर third term में I got rock climbing. I learned how to tie knots, how to do rock climbing, rappelling वगैरह सब कुछ I learned. एंड हमारी ओडी विजिट होती थी, हाइक्स पे जाते थे हम लोग, तो वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग सिखाते थे हमें यस सर। विद हार्नेस, और वो काफ़ी बड़ा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज एनडीए वर्क्स ऑन यू। एनडीए का कॉन्सेप्ट है स्कॉलर वॉरियर एंड ऑल राउंड ग्रोथ। तो ऑल राउंड ग्रोथ के यस। चक्कर में आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज अ कैडेट, विच इज़ वेरी गुड। एंड बिकॉज यू आर कोडर, आजकल एकेडमी में कंप्यूटर एप्लीकेशंस करके नया क्लब है, तो उसमें दे डू कोडिंग, यस। तो यू कैन ट्राई फॉर दैट व्हेन यू सर गो। इज देयर एनी मार्शल आर्ट क्लब? मार्शल आर्ट क्लब इज देयर, आई वेंट देयर इन अच्छा। कराटे क्लब in my third term only. First I went to karate club, I wanted to learn karate, but since seats were very less, so I was changed to rock climbing. So अच्छा। बट कराटे क्लब में क्या होता है, पीटी उस्ताद होते हैं तुम्हारे, और पीटी उस्ताद इज कराटे ट्रेंड। उन्होंने इन कोर्स, अच्छा। एक कोर्स होता है कराटे का इंडियन आर्मी में, तो वो पीटी उस्ताद को कराते हैं ताकि ही कैन टीच अदर्स। तो
वो हमारा एक उस्ताद था, बलराम साहब. ही न्यू कराटे, ही डिड ट्रेनिंग एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम एनएसजी सेंटर मानेसर. तो अच्छा. हाँ, ओ. तो इनिशियली तो बड़ा मज़ा आया हमें. बट वहाँ पे क्या होता है, 1 घंटे में 10 मिनट पहले तो, बिकॉज जब जो फ्रेशर्स होते हैं कराटे के, तो 40 मिनट 45 मिनट्स तुम्हारी स्ट्रेंथनिंग हो रही है. तुम रस्से चढ़ रहे हो, पुशअप्स मार रहे हो, भाग रहे हो, और 15-10 मिनट तुम्हें कराटे के 2-3 मूव सिखा दिए. जो ये तो सर पीटी हो गई ये तो. हाँ, तो एक्स्ट्रा पीटी हो गए तो कोई जाना नहीं चाहता था कराटे में. तो ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में होता है. फिर जब आप सेकंड टर्म में फिर से आ जाते हो कराटे, तो फिर आपका कंडीशनिंग थोड़ा कम हो जाता है. यू फोकस मोर ऑन टेक्निक. यस. तो बट वो ही टीचेस यू वेरी वेल. जो मेरे को सिखाया वो मैं अभी तक साथ में है मेरे. एंड थोड़ी दिन रहा मैं, लेकिन वहाँ पे आई हैड फन. फिर रॉक क्लाइंबिंग में भी अलग अच्छा एक्सपीरियंस था. और ऐसे काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं, एरो मॉडलिंग, गोल्फ, और हाइकिंग, एंड रॉक क्लाइंबिंग, और ऑटोमोबाइल का होता है एक, कि उसमें यू कैन लर्न ड्राइविंग एंड यू गेट लाइसेंस ऑल्सो आफ्टर दैट इफ़ यू पास योर टेस्ट. देन अच्छा. म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के काफ़ी क्लब्स होते हैं. एंड कराटे, ऐसे करके काफ़ी सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन जो मैंने बताया. एक और सर उसका भी होता होगा. आई हैव हर्ड दैट पैराग्लाइडिंग सम, देयर इज पैराग्लाइडिंग, सेलिंग एंड ऑल. सेलिंग इज़ देयर, पैराग्लाइडिंग नहीं है. पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए भेजते हैं टर्म ब्रेक पे लोगों को, बट उसकी वैकेंसी काफ़ी कम आती है साल में 5-6 तो. बट सेलिंग इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड क्लब्स, बिकॉज वहाँ पे ना कैंटीन है. तो कैंटीन में यूजुअली कैडेट्स गो एंड दे चेपोफाई द समोसे, द जलेबी वगैरह, एंड दे हैव फन. और सेलिंग से यू कैन गेट इनटू अकेडमी टीम वेरी इजीली, बिकॉज यू लर्न इट्स, मतलब अच्छा. you learn it fast. You just need to hone your skills. So people get after joining the club, eventually in fifth or fourth term they get experience, and they join the academy team, especially the naval cadets, because this is their field na, after all. तो यस सर. वाटर स्पोर्ट्स और भी हैं, kayaking है, और रिवर रिवर स्विमिंग, लेक स्विमिंग, सॉरी अच्छा. रिवर स्विमिंग बोल रहा हूँ, लेक स्विमिंग होती है. उसमें यू हैव टू स्विम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स होता है, 2.5 किलोमीटर्स. तो वो भी अच्छा रगड़ा ही है वो भी ऑलमोस्ट. बट लग रहा ही है सर एक तरह के. फिर लाइफ सेविंग बट सर स्किल्स आई का भी भाई होता है. हाँ, वही है सर कि मतलब I feel India is the only place that gives you so much to learn and so many opportunities. yes, है you're ना right, सर? absolutely right. And it's just wonderful, yeah. When I came from academy, so I was seeing ki what I have lost, but I saw ki what I have gained. I have gained Yes, mental strength, exactly. I have gained physical strength, I have gained my experience जो academy का था. I know now better. I know a foreign language, I know Arabic, I know Urdu, Yes, sir. and that was given to me by academy. I was trained in weapons training, tactics, field engineering. So uh, I have to think ki what I was given. I was taught how to Yes, sir. conduct myself in public gathering, and about the military laws, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमराडरी और जो दोस्ती मैंने जीती है वो, क्योंकि वो कोई हाँ, कभी. Yes, कोस्टमेट्स का, यू नो, यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, कि कोस्टमेट्स का yes, क्या sir. वैल्यू I होता know. है तुम्हारे लिए ज़िंदगी में. दे आर लाइक ब्रदर्स. मेरा एक रियल भाई है. They are more than family, sir. हाँ, मेरा एक रियल भाई है, एंड आई एम मोर क्लोजर टू माई कोस्टमेट्स देन हिम. तो Exactly, sir. हाँ, Exactly. तो दैट इज देयर. सो थैंक्स यार फॉर कमिंग ऑन अ शो, एंड इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू and interacting with you. Yeah. There I had fun, and I'm sure many aspirants get to learn something from you, because you were, I think, the first Air Force aspirant who has come on a show. So Thank you, sir. I'm sure कि CPSS वाला वो experience और 2-3 जो और preparation और SSB के preparation, they will definitely learn. Plus, Yes. I just want to tell my viewers कि our show is non for profit show, and all the Yes, money sir. which is generated from our show will go to Bharat Ke Veer Foundation. You can check it on the net, and we have started monetizing last month, and Yes. we gained that respect fast. In around 1 month we were able to start our monetization, and we just need your support.
So please see our videos in whole, because उसी से maximum watch time बढ़ता है. And please comment section और like Yes. button दबाओ ताकि आपको algorithm को पता चले कि this is a good video and many people get to learn from it. And please share it amongst your Yes. friends. And thank you very much, Swayash, for your for your help and for your support. And I'm sure aspirants will learn Anytime. something from you. Anytime. Thanks, buddy. Yes.